Good morning, students. Our next topic in this chapter, means chapter number 4, is pressure. In my previous video, I told you about contact and non-contact forces better. Now, what is pressure? We know that effect of a force on different objects are different better. आप एक एग्जाम्पल सोचो कि आप जो स्कूल बैग लेके जाते हो कि उसको अगर आप थिन स्ट्रिंग से अपने कंधे पर रखते हो या ब्रॉड स्ट्रैप्स रखते हो तो किस में ज़्यादा दर्द होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अपने शोल्डर पर टांगते हो कि उसकी एक की थिन है और एक की थिक है। आप जिसकी स्ट्रैप थिक है उसको लेने में ज़्यादा आसानी फील करते हो, मीन्स उससे आपको दर्द नहीं होता, आपके शोल्डर के ऊपर दर्द नहीं होता, जबकि इससे होता है। इसका मतलब दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ओवर ए स्मॉलर एरिया इट्स इफेक्ट इज फेल्ट मोर। बैग में वेट सेम है आपके, लेकिन इससे लगाते हो, अगर इससे आप टांगते हो तो आपको दर्द होता है और इससे आपको दर्द नहीं होता। तो इट मीन्स जो उसका इफ़ेक्ट है, फोर्स का जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पर, मीन्स आपके बैग में कितना वेट है, एंड द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, और कितने एरिया के ऊपर लग रहा है, मीन्स इतने एरिया के ऊपर लग रहा है या फिर इतने चौड़े एरिया के ऊपर लग रहा है। मीन्स फोर्स depend on, means effect of force depend on two factors, that is magnitude and area. Now एक न्यू क्वांटिटी बताऊंगी मैं आपको, प्रेशर। प्रेशर मेजर्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो फोर्स का इफेक्ट है वो किसके द्वारा मेजर होगा? प्रेशर के द्वारा। बिफोर डूइंग प्रेशर, लेट अस learn one more thing, what is thrust. When we apply force in a direction perpendicular to a given surface area, we call it thrust. बेटा अगर हम फोर्स को ऐसे परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं, मीन्स ऐसे परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से नीचे, इस तरह से जब आपका परपेंडिकुलरली ऐसे करके फोर्स अप्लाई होता है, देन वी से दैट इट इज थ्रस्ट। नाउ व्हाट इज प्रेशर? Thrust acting on a unit area of a surface is called pressure. Means thrust upon surface area over which it acts. Yes, students, increase or decrease in area will determine the pressure. Means if area increases, pressure decreases, or if area decreases, pressure increases. Let us do some example. Here is a coolie carrying a load. You can see here. He used to put a round piece of cloth on his head. बेटा अपने सिर के ऊपर इस तरह से एक round piece of cloth रखता है. This round piece of cloth increases area. इससे बेटा एरिया इंक्रीज हो जाता है, सो प्रेशर डिक्रीजेस। लाइक दिस, वन मोर एक्टिविटी इज देयर। क्ले इज टेकन एंड ऑन द क्ले दिस इज अ क्यूबॉइड शेप्ड आयरन पीस और वुडन ब्लॉक, यू कैन से, एंड वी आर पुटिंग दिस वुडन ब्लॉक from 3 dimensions on the clay. Means, for example, like this, I am having this is a type of cuboid, but it is made of glass, not of wood. If we place it from this dimension, like this and this, means there are 3 dimensions. From these 3 dimensions we are putting it on a clay, and by placing equal weight all the 3 times,
we will see that in which case it sinks more. किस कंडीशन में ये ज़्यादा नीचे जाता है. I am doing the activity with the help of floor. I am having a floor here, you can see here. Let me put it like this, and I am putting this weight on this. You can see here it gets sink in the floor. You can see here. Now let me put it like this, and again same weight. Now see the difference. You can see here this depth is more as compared to that of this one. As here area is more, so it get sink means less sink in the floor, and here area is less, so the height is more. You can do this activity if you are having clay at home, or you can also use sand. By using sand you can do the activity, and if you have wooden block like this or plastic block, whatever you can take. Let me show you one more example. For example, I am having this pencil. This is the pointed end and this is the flat end. Look here, if I keep it like this, it go more into it, and like this very less, like this. You can see very less, and here the end was pointed means area less, so it sinks more. You can see here it sinks up to here, but in this case it sinks only up to here. So from here we learned that if area is more, pressure is less. Some applications of this beta. Buses and trucks usually have double wheels on the rear side. बेटा जो बसेस होती हैं उसके जो रियर व्हील्स मीन्स पीछे वाले, जो पीछे वाले जो व्हील होते हैं वो डबल होते हैं. आप लोगों ने ट्रक्स में भी देखा होगा, पीछे सामान लोड करना पड़ता है, इसलिए वो जो पीछे के जो ट्रक हैं उनके पहिए डबल होते हैं. बेटा डबल या ट्रिपल आपने देखे होंगे, क्योंकि इससे हम एरिया ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया प्रेशर डिक्रीजेज. क्योंकि ट्रक के अंदर इतने लोहे वगैरह जो सामान जाता है बेटा, हैवी सामान जो जाता है, अगर हमारा एक ही टायर होगा पीछे या एक ही व्हील होगा तो वो सड़क में सिंक हो जाएगा. इसीलिए 2 या 3 डबल व्हील्स रियर साइड में लगाए जाते हैं. हाई राइज बिल्डिंग्स एंड डैम्स हैव वाइड बेस. जब घर बनाते हैं उसकी दीवार के नीचे बेटा उसका बेस वाइड होता है, उसके ऊपर पतली दीवार खड़ी होती है. वाई? बिकॉज एरिया इंक्रीजेस, सो द डेंजर ऑफ सिंकिंग इज लेस. मीन्स वो उसमें मिट्टी में नहीं फंसती. ऐसे ही डैम्स वगैरह में, डैम्स के जो पिलर्स होते हैं उनका जो बेस होता है नीचे वो बहुत ही वाइड होता है, जिससे कि वो ज़मीन में सिंक ना हो जाए. टैंक्स एंड बुलडोजर्स आर फिटेड विद कैटरपिलर ट्रैक्स रादर देन व्हील्स. टैंक्स और बुलडोजर्स बहुत हैवी होते हैं बेटा, उनके टायर के ऊपर कैटरपिलर ट्रैक्स होते हैं, ऐसे चेन टाइप की होती है. अगर वो नहीं होगी तो वो उसमें ज़मीन में सिंक हो जाएंगे, सड़क पर भी सिंक हो सकते हैं वो. रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स. रेलवे लाइन के नीचे चौड़े चौड़े आयरन या वुडन स्लीपर्स होते हैं बेटा.
to reduce the pressure, because area increases and hence the pressure decreases. These all examples are related to increase in area and decrease in pressure. Now let's take the example of decrease in area and increase in pressure. If the area decreases, pressure increases. For example, we cut with a sharp knife, then with a blunt knife. I am having the knife, beta. This side is sharp and this is blunt. In order to cut the vegetables, we use the sharp side, beta, instead of blunt side. For example, I am having the paper. It is easy to cut the paper from this side. If I cut it from this side, it will take more pressure, बेटा, ज़्यादा फोर्स लगेगा इसको काटने में, and it is easy to cut from this side. आप लोगों ने पिन देखी होंगी, सेफ्टी पिन जैसे होती है, उसके एंड जो है ना पॉइंटेड होते हैं बेटा. ये ऑल पिन होती है, सुई होती है, या थंब पिन ले लो बेटा. थंब पिन की जो पॉइंट होता है, जैसे सेफ्टी पिन है, ये बड़ी ही शार्प होती है बेटा. अगर ये शार्प नहीं होगी तो पेपर में या किसी भी चीज़ में डालने में इसको दिक्कत आती है. शार्प है तो इजीली इंसर्ट हो जाती है बेटा ये, और अगर शार्प नहीं होगी तो आपको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आती है. तो क्या कहते हैं ये, इट इज़ ईजियर टू कट विद अ शार्प नाइफ देन विद अ ब्लंट नाइफ. नंबर 2, नेल्स, पिन्स एंड स्पाइक्स हैव पॉइंटेड एंड्स. नेल्स के भी एंड जो क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, so that they can be driven into the surface with minimum effort, जिससे कम एफर्ट से आपके सरफेस में चले जाए. आपने देखा होगा थंब पिन से जब हम कोई पोस्टर लगाते हैं तो जिसकी शार्प एंड है वो जल्दी इंसर्ट होता है, और जिसका ब्लंट एंड है उसको हम छोड़ देते हैं वो, क्योंकि उसमें डिस्प्ले बोर्ड में इंसर्ट नहीं होता बेटा. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट pressure. Now let's do liquid pressure. Now liquid pressure is also called hydrostatic pressure. The pressure exerted by stationary liquid at any point inside the liquid is called hydrostatic pressure. Beta, here this is a pipe, transparent pipe, and at the bottom there is a rubber balloon. Here in both the cases. Now fill this pipe with colored water and check the bulging of balloon on the lower surface. The height of water is more in this case as compared to this one. You can see here bulging of balloon is more here as compared to this one. It means pressure exerted by the water column at the bottom of the container increase with increase in height of the column. Means जैसे जैसे height अगर इसकी water की बढ़ेगी तो bulging ज़्यादा हो रही है. It means pressure increase हो रहा है. Now here is an activity to show that more pressure is there at the lower surface as compared to that of the upper surface. I want better that any one student should do the activity and share it in the group. What you have to do is that आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी, कोई भी एक ले लेना बेटा, जिसमें 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आती है वो लेना. और आप क्या करना, उसमें कलर्ड वाटर फिल करना. कलर्ड नहीं तो वैसे भी चलेगा, कोई बात नहीं. आप इक्वल डिस्टेंस पर उसमें होल करना, ऐसे हाइट पर, जैसे 3-3 सेंटीमीटर के गैप पर होल कीजिए और उसको फिल कर दीजिए पानी से. उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो लोअर होल है उधर से पानी बहुत दूर जाके गिरेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द
upper hole. It means liquid pressure is more at the bottom as compared to top. बॉटम में प्रेशर ज़्यादा तभी तो लिक्विड दूर जाके गिरे, टॉप में कम है तो पास आके गिरे. इट मीन्स लिक्विड प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट ऑफ द लिक्विड. आल्सो it depend on density of the liquid beta. Now instead of using water you can take mustard oil also. Since mustard oil is slightly thick, its density is high, so it will not fall as much distance away as it is in case of water. Now similar activity here to show that liquid exert equal pressure at equal height. Means liquid pressure is transmitted equally in all direction at same height. Means आप एक और बॉटल लेकर अब इक्वल हाइट पर दो होल करने, आपको एक इस साइड में दूसरा इस साइड में, और फिर आप उसको वाटर से फिल करोगे. आप क्या देखते हो कि जितनी दूर इधर आकर गिरा है मीन्स इस डिस्टेंस पर, तो उधर भी इसी डिस्टेंस पर होगा. तो इक्वल हाइट के ऊपर इक्वल प्रेशर है. फ्रॉम हियर वी कम टू नो दिस. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर. नंबर 1, लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द बॉटम. मीन्स अगर आपके पास कंटेनर की ऐसे ऐसे शेप है, अलग टाइप की शेप है, लिक्विड प्रेशर will remain same. Means उसके bottom पर depend नहीं करता. Liquid pressure on the bottom of the container does not depend on the area of the bottom. Means area of the bottom पर depend नहीं करता. Liquid pressure तीनों में same रहेगा. Number 2, liquid pressure at any point inside the liquid depend on the density of the liquid and height of the liquid column. मीन्स एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड. सपोज कोई इसमें लिक्विड है, एट एनी पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी किस पर डिपेंड करेगा. नंबर 1, हाइट ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. मीन्स लिक्विड में गाढ़ापन कितना है. नंबर 3, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर. अगर बाई चांस हमारे पास ऐसे करके लिक्विड फिल है और इधर मैं इसमें लिक्विड और पिस्टन से अगर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो इट एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इक्वल प्रेशर लगाएगा ये. नेक्स्ट, एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली. अच्छा, इसमें तो था इक्वल, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर. इसमें आ गया बेटा ये एक्सटर्नल प्रेशर. अब ये एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड. तो ये यूनिफॉर्मली आपके लिक्विड में चला जाएगा. मीन्स सब जगह इक्वल होगा. और इधर था लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. मीन्स सभी वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर लगेगा, लेकिन जब आप ऊपर से अप्लाई करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा. This is the difference. That's all about it. Thank you.